Everyone knows what is ASP.NET. Am I right? When a fresher makes a web page, you also makes a web page. They also go for database connectivity. You also go for database connectivity. Difference only, they can make 1 or 2 pages in a day. You can make a 5 pages in a day. Due to practice and experience. ASPX is extension. सुन लो आप. ASPX is extension. And my logic or my code or my business logic or my preparation or my effort for last several days is kept in CS. So I love my CS. Because there is effort done by me in CS. So ASPX is an extension provided by Microsoft ASP.NET. CS is the name of the file where I write my logic or my code. But the code will be executed. The code will be run if ASPX calls CS. And ASPX will be called by browser called client. So client request to ASPX. ASPX forward the request to CS, and my code, my logic, connection, command, adapter, procedure, whatever is written in CS. CS execute means database execute or query execute, and resultant goes to ASPX and they transfer into what? Client. So definitely, obviously, there is a man sitting in ASP.NET. They checks extension. Once it is validated or authenticated, checked, then they refer to CS or then they call to CS. It means there is a prerequisite. The code of CS will be executed when there is extension called ASPX. If extension is called Aurora, I can open the gate. So there is a lady inside the room, and uncle is knocking the what? Gate called door. That lady listen the what? Request. But she just the request. If it is ASPX, I will open the gate called CS. There is a relation between ASPX and CS. But if there is other extension, I will keep my ear closely to listen who is requesting me. Okay, is of different type. I will not open the door. Means CS will be executed. Prerequisite. CS will be executed when there is extension called ASPX. It means there is a default handler is given in ASP.NET. There is a default handler
is given in ASP.NET and that handler got a shart. If request is ASPX, then I can call the CS. The biggest and very significant drawback, the biggest and very significant drawback of HTTP handler is that they can only be used for extensions that are mapped in what? ASP.NET IIS. HTTP handler is a program. They first check the extension and they do several formalities. After that, my code will be executed. So that if I change my extension, my CS will not execute it. वो तो क्लास है, वो तो कंपाइल करेगा बेटा. HTTP हैंडलर कॉल किसको करेगा बोलो? पेज हैंडलर फैक्ट्री को. सर ISAP से एक्सटेंशन मैच करने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग हैंडलर कॉल होता है. हाँ, तो सर ये हैंडलर जो कॉल होता है, वो हैंडलर कौन है? करे पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास है. HTTP हैंडलर पहले एक्सटेंशन देखता है, बोलो कौन? ASPX. अगर ASPX है उसके करस्पॉन्डिंग कॉल बोलो होगा. एक इनबिल्ट हैंडलर बना हुआ है, बोलो कौन? पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास. जहां सारे सूची पड़े हुए एक्सटेंशंस के, उसको बेटा बोलते हैं ISIP. जहां सूची पड़े हुए सारे, हाँ जी, मैपिंग. ISIP के पास सारे सूची होते हैं, बोलो कौन? एक्सटेंशन मैपिंग के. Don't be confused the difference between page handler factory class and HTTP handler. Page handler factory is a handler for HTTP handler for ASPX. अगर ASPX एक्सटेंशन है, उसका बोलो उसकी क्लास कौन होगी कंपाइल करने के लिए? पेज हैंडलर फैक्ट्री. ये केवल .ASPX चेक करेगा, .ASMX अगर आ गया. बेटे HTTP हैंडलर एक ही है. सुन बेटा, एक ही HTTP हैंडलर है. आप जैसा रिक्वेस्ट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा? कोड हैंडलर प्रोवाइड कर देगा. समझ गए? और सर ISAP में तो 4 एक्सटेंशन उसमें दिए गए हैं. .ASPX, .ASMX. रुको करें. HTTP हैंडलर एक है. सुन रहे हैं? यहां पे एक्सटेंशन क्या है बोलो? स्पेलिंग को छोड़िए प्लीज. एक्सटेंशन मैपिंग, स्पेलिंग छोड़ो. और इसके बाद तुम्हारे बोलो क्या है? करस्पॉन्डिंग क्या है बोलो? क्लासेस है. अरे बोलो करस्पॉन्डिंग क्लासेस है जो तुम्हारी चीजों को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे. समझ आएगी बात? और अभी जान की वर्ड और नहीं बोल रहा हूं, मैं लिख देता हूं. HTTP मॉड्यूल एक ही बेटा मॉड्यूल है और एक ही बोलो क्या है? हैंडलर. एक ही साले हैंडलर. सुन ले, चाहे वेब सर्विस हो चाहे WCF हो, हैंडलर टर्म एक है. HTTP है सिंगल टर्म. उसके करस्पॉन्डिंग बोलो कौन कॉल होता है बोलो? क्लास विच कैन कंपाइल. अब इसको छोड़ दो. अब देखो तुम्हारे सामने SVC है, ASP है, not waste time please. ASPX है and what? और लास्ट लेवल ASMX है. छोड़ो करे हो गया. इसकी बोलो कौन है? CS है.
इसकी बोलो कौन है? CS है। इसकी कौन है? बोलो CS। और ये आपका क्या है? बोलो L है, L है, और बोलो क्या? मतलब लॉजिक। समझ गए? और ये इसका मतलब, यहां का मतलब क्या होगा? यहां पे इस एक्सटेंशन को चेक होने के बाद करस्पॉन्डिंग क्लास कॉल होगा जो इसको कंपाइल करेगा। वो भी है बेटा, बहुत सारे एक्सटेंशन है, 2-3 लिखना है, आई डोंट वेस्ट टाइम। बहुत सारे एक्सटेंशन मेरे पास। डार्लिंग हैंडलर एक है, बस हैंडलर, और उसकी करस्पॉन्डिंग क्लासेस हैं जो उसे कंपाइल करते हैं और बोलो रन करते हैं। बात ही समझे? अरे बोलो, हैंडलर एक। नाउ फाइनली दिस इज सिंगल HTTP मॉड्यूल, उसको भी छोड़ दो। दिस इज सिंगल HTTP हैंडलर, बट HTTP हैंडलर सेज if a user request for any extension of any URL, I will check those extension against to what? Extension mapping. ये लिस्ट कौन रखता है? DC1 DLL is having all the what? List of extensions. और बेटे ये हैंडलर, HTTP हैंडलर, इस एक्सटेंशन से करस्पॉन्डिंग क्या प्रोवाइड करता है? तुमको बोलो, क्लास प्रोवाइड करता है। अब मेरे को दिक्कत ये है बेटे कि जो मैं CS हूं, मैं जो CS हूं, और यहां पे फिर क्या होता है? नीचे, इसके नीचे क्या होता है? सुनो करें, कस्टम बोलो कौन? एरर। कस्टम एरर का मतलब, अगर आपने मान लो गलत एक्सटेंशन से मेरे को रिक्वेस्ट करा तो हैंडलर ने उसको हैंडल नहीं करा, एल्स में कौन चला गया बोलो? तो वहां पे बोलते 401, 404, 403, 402, हर की बोलो क्या बनी होती है? HTML फाइल बनी होती। कस्टम एरर। अब सुनो, इसको मिनिमाइज करो। अब तुम डॉट इट खोलो। तो नेट ने परेशान कर दिया साला मेरे को। फाइल, न्यू, वेबसाइट, PSP.NET, ओके, समझ गए बालक? ध्यान रहेगा आपको। दिस इज सिंगल HTTP हैंडलर इन .NET, ऐसे बोल देना। दिस इज सिंगल HTTP मॉड्यूल इन व्हाट? ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हैंडलर एक ही होगा, उसके करस्पॉन्डिंग क्लासेस होंगे। क्या बोल? करस्पॉन्डिंग क्लासेस होंगे। समझ गए? अब यहाँ देखिए अंकल, यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? कस्टम एरर 403, 404। अब देखिए 403 में ये वाला फाइल कॉल हो गया, और ये वाला फाइल IS के पास पड़ा हुआ, ये वाली फाइल IS के पास पड़ी भी। आप चाहो तो अंकल इस फाइल का नाम चेंज कर दो। पूछो क्यों? एक डॉक्टर ने किसी साइट को रिक्वेस्ट करा, हम लोग बने गलती करने के लिए, am I राइट? बस गलती ये हो गई, जब साइट का एक्सटेंशन दे रहे थे ASPS की जगह ASPP हो गई, तो वहां से एक मैसेज आया, फाइल नॉट फाउंड, समथिंग नॉट फाउंड। वो डॉक्टर उस लाइन को पढ़ नहीं पा रहा ठीक से क्या लिखा हुआ है। उस केस में आप क्या करो, एक अच्छी सी मैसेज टाइप करके डाल दो,
उस केस में अब यहां पे इस फाइल का नाम निकाल दो, नहीं है सुन, और कोई HTML का फाइल, वो वाली फाइल कहां रख दो आप, अपने C ड्राइव के अंदर पाथ दे दो। अब जो डॉक्टर को मिलेगा इशू तो उसको पूरा तरीके से पढ़ सकता है, नहीं है समझ, ठीक है। चलो समझ आ गया बालक। तो देयर इज ए सिंपल सिंगल वर्ड हैंडलर एंड मल्टीपल एक्सटेंशंस एंड corresponding classes which can handle the what request, ऐसे बोलो। Otherwise there is a custom error, and custom error is a HTML file defined in IIS root, but those methods are very not user friendly। तो डॉक्टर ने यार तुमने, चलो ठीक है हमने गलती करी, हमने अगर गलती करी तुमने क्या सॉल्यूशन दिया हम समझ नहीं पा रहे। उस केस में जो इनकी इनबिल्ट HTML की फाइल है उनका नाम बदल दो और अपने बना दो एक फोल्डर, नाम दे दो एरर नाम का फोल्डर, और उसमें रख दो HTML की फाइल। अगर ऐसा गलती हो तो ये वाली फाइल कॉल हो जाए। अरे वो गेटिंग ना, ट्राई थ्रो कैच यार, अपनी मैसेज दिखा दी। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे सुना ठीक से। अब बेटी ये हैंडलर आ गया, उसने इसको चेक कर लिया चेक। कहां से चेक किया, यहां से हो गया चेक। करस्पॉन्डिंग क्या मिल गई बोलो, क्लास मिल गई, करस्पॉन्डिंग क्लास मिल गई। अब बेटे क्लास के चक्कर में देखो क्या हुआ, जो करस्पॉन्डिंग क्लास मिली देखो उसने क्या करा। अब तुम्हारी, अब मैं इसको लिख रहा हूं, इस वाले को लिख रहा हूं, मेरी क्लास ये करस्पॉन्डिंग क्लास मिली सी, करस्पॉन्डिंग क्लास। आपको बिल्कुल नहीं बोलना है पेज हैंडलर फैक्ट्री क्लास, तो अभी से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, ठीक है। और क्लास का नाम बोलो कौन, डिफॉल्ट। बेस क्लास बोलो कौन, हो गया। और तुम्हारे यहां क्या बोल पड़ी हुई, लॉजिक पड़ी, ठीक है बेटे। अब तो मेरी उप्स की क्लास याद करो, उप्स वाली। हेलो, यस, जल्दी बोलो। हाँ, तुम्हें को एक करो, तुम्हें को आधे दिन बोलो, ठीक है बेटा। ऐसा है जहां दिक्कत है मनीष, जहां लगे मुझसे पूछ लो, जहां भी आपको लगे डाउट, सुना मेरी बात को, जहां भी डाउट लगे आपको मैं अंदर समझा दूं ऐसे लॉजिक में। ये गार्ड है, एक ही गार्ड है, एस के गुप्ता से मिलना है, एस के गुप्ता से मिलना है। फ्लैट नंबर याद नहीं है, वो सूची निकालता है एस के गुप्ता, बगल में 403 नंबर फ्लैट है, जो आपको वहां मिलेंगे एस के गुप्ता, अदरवाइज वो नहीं। अब यहां आ गए। अब मेरी इनहेरिटेंस की क्लास याद कीजिए। अभी वाला मैं किसी को खड़ा करूंगा, जवाब नहीं मिला, उसकी मैं ऐसी हालत करूंगा, वो साला मेरे को लाइफ टाइम याद रखेगा, मेरे लाइफ टाइम याद रखेगा। अब ये बंदा इस क्लास का बोलो क्या बनाएगा, कंपाइल हो गया। अरे बोलो यार कंपाइल हो गया, DLL बन गई। इस क्लास का बोलो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अंकल आप याद कीजिए मेरी इनहेरिटेंस की क्लास, अगर इस क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट, इस क्लास का भी बनेगा ऑब्जेक्ट। और इस क्लास का अगर बनेगा ऑब्जेक्ट, इसकी जो बेस क्लास है टेम्पलेट कंट्रोल, उस क्लास के भी क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद
इस क्लास के बनेंगे और ऑब्जेक्ट, बोलो कौन? नहीं आया सुनो, नहीं आया। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब मैं अब तक प्रतीक आउटपुट का वेट कर रहा हूं। नहीं आया सुनो, जो आपने मेरे को डिफॉल्ट क्लास दी, वो कमीना क्लास क्या करेगा, मेरे क्लास का बनाएगा ऑब्जेक्ट, और हियरार्की में जितने क्लासेस हैं उनका बोले क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। मैं तब तक अपने लॉजिक को एग्जीक्यूट करने का वेट करना। नहीं आया सर? मैंने बेटी बता रहा हूं, ये आदमी मेरे को धोखा दे रहा है। ये आदमी, ये धोखा नहीं दिया, मेरे को धोखा इसने दिया। ये इसको कॉल कर रहा है आफ्टर दिस, am I right? और अल्टीमेटली इसको भी आप ब्लेम कर सकते हो। बात खत्म हो, ठीक है? अब तक मेरी कोड एग्जीक्यूट नहीं भी है, और क्लाइंट इधर है। एक और नोटपैड खोले, क्लाइंट एक और जो अब तक आउटपुट का वेट कर रहा है, प्रोग्रेस बार चल रही है, उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, इरिटेट हो रहा है, डिस्गस्टिंग, रेडिकुलस। तो 3 बन गए अब तक बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट, 3 चीज हो गई। अब मेरी क्लास याद करो, ये फंक्शन जो अब जो लॉजिक लिखा है अंकल, आप लॉजिक ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं। लॉजिक कभी किसी फंक्शन के ही अंदर होगा। क्लास में आप कोई काम नहीं कर सकते हैं अंकल जब तक क्लास में फंक्शन नहीं बनाए। समझ गए? मतलब क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहां मेरी फंक्शन है, फंक्शन ABC। अब बेटा देखो, अगर तुम्हारी क्वेश्चन थोड़ा हद तक ठीक था, आप किसी भी गधे से मिलो, वो कभी नहीं बोलते मल्टीपल हैंडलर्स होते हैं। तो ये आंसर थोड़ा सही है शैलेंद्र, कि मल्टीपल हैंडलर्स होता है। और आप यहां से देखोगे तो वास्तव में मल्टीपल हैंडलर्स है। अरे बोलो यार, पर अब HTTP हैंडलर बोलोगे तो एक होगा। नहीं यार सर, अरे बोलो यार, क्यों? इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास होंगी। अरे बोलो यार, इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास होंगी, बट बेटा एक ही HTTP हैंडलर होगा। पूछो क्यों? पूछो। अरे ये तो इंटरफेस है, ये क्या बोलो? इंटरफेस। HTTP हैंडलर एक ही होगा, उसकी करस्पॉन्डिंग क्लासेस हैं जो उस केस को हैंडल करेंगे। अरे बोलो यार, तुम्हारे कॉलेज में प्रिंसिपल एक ही होगा, उसने बना रखे 5-6 अपनी कमेटी, उस केस को हैंडल करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, सुन गए बेटे? तो अब यहां आ जाओ। तो अब ये फंक्शन, तो मेरे को तुम पहले इस क्वेश्चन का जवाब दो, 3 ऑब्जेक्ट क्यों बने? 3 ऑब्जेक्ट क्यों बने? 3 ऑब्जेक्ट बने तो 3 कंस्ट्रक्टर बने, और तीनों चल रहे हैं हीप के अंदर। ये बोल रहा है इस गधे को हटाओ, इसको भी हटाओ, अब इसको दे, ये इसका जूम पार्ट। तीन ऑब्जेक्ट बने, 3 कंस्ट्रक्टर बने और हीप में गए। मेरी केवल क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना? मेरी केवल क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना? कौन सी क्लास? ठीक है, चलो। अभी किसी को मैंने खड़ा किया था, साला शुक्र से नहीं बोला उसका, मैं आज इसको पीछे बंद करूंगा, यहीं पे ऐसा नहीं बैठूंगा, मेरे को बंद करके। ठीक है अंकल, आगे समझ में? तो अब ये फंक्शन है, अब ये देखा तो पहला देखा पॉइंट्स नेगेटिव, पहला y3 what objects are created।
हमें तुम एक्सपेंसेस का थोड़ा मेरे को ब्यौरा दो, तुम्हारे खर्चे का दिखाओ, पूरा कहानी बताओ मेरे को। Why 3 objects are created and definitely and corresponding what? Spelling show corresponding what? और लास्ट में corresponding बोलो कौन? What? सेकेंड पॉइंट। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कहां पड़ी है? क्लास में। ये फंक्शन पड़ी है क्लास में, सुनो, यहां सुनो, ये फंक्शन पड़ी है क्लास में, और ये फंक्शन कहां से कॉल हो रही है? एसपीएक्स के क्लिक से। नहीं है सर? अरे बेटा बोलो, सब चाहते क्या? मेरा दिमाग मत खराब करो। अब बताओ सब चाहते क्या? इतनी गलती मेरी मत गिनवाओ यार आप। मतलब चाहते क्या? बदतमीज मैं ये चाहता हूं, एक एएसपीएक्स के पीछे सीएस है, और एएसपीएक्स के ऊपर तो मेरे को टाइम दिखाओ बस। लो, हम यही चाहते हैं, तुम मेरे को करंट टाइम दिखाओ। खुश? मतलब कहां दिखाओगे? बतलाओ तुम कहां दिखाओगे? पेज लोड में? अरे बोलो यार। अब बंदा उतर गया बदतमीजी पे, उसके लिए मेरे पास वाले का जवाब है। बदतमीजी को बंदा उतरता है, अब सारे को नॉलेज से डिफीट करो। मैंने कहा तुम मुझे एसपीएक्स पेज के ऊपर लेवल, तो लेवल पे मेरे को टाइम दिखाओ। क्या करोगे? काम की बात करो, क्या करोगे तुम कहां लिखोगे? लेवल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइम, मतलब कहां लिखोगे? किसी न किसी तुम फंक्शन में लिखोगे, और फंक्शन किसी न किसी क्या बोलो इवेंट से कॉल हो रही है। यही तो दिक्कत तुमसे मुझे हो रही है बालक। हम जैसे पेज रिक्वेस्ट करें, मेरे को लेवल में टाइम मिलना चाहिए। हम जैसे आईआरसीटीसी के साइट को रिक्वेस्ट करें, हमें इस ट्रेन का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए। सर मैं आपकी बात, आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। अच्छा साले तुम मुझे बताओ, तुम काम कैसे करते हो ऑफिस में? तुम बता काम कैसे करते हो, बस ये बता दो तुम मेरे। ये तुम्हारी डिजाइन है, यू में चलो, टूल बॉक्स में चलो, एक लेवल ले ली, तुम मुझे इस पे टाइम दो, बस बात करो। और सोर्स में क्या लिखोगे? बदतमीज क्या लिखोगे? ये तुम टाइम कैसे लिखोगे? तुमको मैंने सीएस दी है ना, तो लिखो सीएस में। सर बात तो फिर वही हो गई, सीएस में कहां लिखूं? नहीं है मेरी बात प्रतीक, मैं सीएस में कहां लिखूं? मैं चाहता हूं ऐसे लिखूं। ये अगर हो सकता है तो मजा आ जाएगा। अगर ये हो सकता है, लेवल 1 लेवल था क्या वहां पे? तो बिल्ड कर दो इसको। बालिका मैं खड़ा करूंगा, जवाब नहीं मिली तो मैं सीधे यही बंद कर दूंगा। सुन लो, आई वांट कंप्लीट पिक्चर। क्या बोल रहे हैं? या आप मुझे टेक्स्ट बॉक्स में महात्मा गांधी का नाम दिखाओ। चल ये टेबल है, ये कनेक्शन है, ये कमांड है, ये डेटा है। तुम कोड लिखो, देखते तुम कोड कहां लिख रहे हो। मैं देखता हूं तुम कोड कहां लिख रहे हो। तुम ऐसे लिखो, मुझे खुशी हो जाएगी। ऐसे लिखोगे तुम लेवल, ओ भाई देखिए अंकल, एक क्लास में लेवल का नाम तक नहीं आ पा रहा। तो किसी को मैं खड़ा करता वो नहीं बोल पाता, मुझे पता है। राइट? आपको था पहले से पता नहीं, बात पता था आपको पहले से। सर झूठ मत बोलना मेरे से। नीचे आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा।
झूठ मत बोलना मेरे से बालक, इधर गुरु हूं, पता था बस। तो एहसास बोलने के बाद आ गया तो कोई बड़ी बात हो गई। सारा दिमाग खराब हो रखा है यार। एक सारा फेस का कोई भी कंट्रोल क्लास से ना दिखता, कहां फंस गए यार। और यहां लेकर तो मेरे को गाली देते हो सर, क्यों? यहां लिखने का मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन है, अरे बोल यार, और फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, अरे बोल यार। अगर साला ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस बोल दो मेरे को तुम ऐसे बना दो, मेरा बाप ऐसे बना दो ऑब्जेक्ट। तो बेटे 60 रुपया खर्च करके मैं 20 रुपए का सामान ले रहा हूं दहेज, बनिया मर जाएगा उसी वक्त। 60 रुपए का सामान खरीद, 60 रुपए लगाकर सारा 20 रुपए का फायदा। मूवी देखिए शराबी, देखिए अमिताभ बच्चन क्या बोलता है जयप्रदा को, 9 लाख की हार अब 12 लाख का आंसू। 9 लाख के हीरे और 12 लाख के आंसू। ढक्कन एक फंक्शन कॉल करने के चक्कर में, एक लॉजिक कॉल करने के चक्कर में 3 बोल क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। और क्लास के स्कोप में कंट्रोल का नाम नहीं दिखता है यार। क्या प्रोग्रामिंग करिए माइक्रोसॉफ्ट कि बेटा एयरस्पेस का कोई भी कंट्रोल हो, वो कभी ना कहां दिखता है? बोलो, उन्हीं के इवेंट में दिखता है। अरे बोल यार, उन्हीं के फंक्शन में दिखता है। एक काम करता हूं, रुक जाओ, मैं अपना बनाता हूं फंक्शन और लिख वर्ड शो लेवल 1। मजा आ गया, अब तो लगता है हो जाएगा मेरे से। लेवल 1। अब गधे मास्टर को ठीक करता हूँ, गधे तू टेक्स्ट दे दिया, बोलो कौन? लो संदीप दे दिया। सर जी महाराज मुझे बताओ इसे कॉल कहां से करोगे? नहीं है सर, कहां है क्यूब्स? सर 2 गोलगप्पे बन गए अब क्यूब्स। इसे कॉल कहां से करोगे इस फंक्शन को? किसी न किसी तुम फंक्शन से ही कॉल करोगे। और वो फंक्शन क्या बोलो? इवेंट से कॉल हो रहा है। और वो इवेंट कहां डिफाइंड है गुरु? कंट्रोल में। जब तक बाप रहेगा बोलो कंट्रोल, तो आपको इवेंट मिलेगा। और बोलो और इवेंट से क्या मिलेगा?